UV visible spectroscopy part 5, and we have been talking about in earlier lectures about the absorption of UV energy and the consequences. This is the extension of the earlier lectures, and now you understand I'm Saurabh, your instructor for this particular set of videos. So we shall proceed further. Ultraviolet energy is large enough to perturb electronic structure of the molecule, which can be a basis of identification and quantitative determination of the compound under investigation. Now, this means that if you are interacting certain substance with UV energy, अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को UV एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में एक परटर्बेशन होगा, एक डिस्टर्बेंस होगा, एक एक्साइटेशन होगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर विल बी सम एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, और इसके आधार पर उस कंपाउंड का पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, और न सिर्फ इतना, लैम्बर्ट बीयर लॉ के हिसाब से इसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन अर्थात उसकी मात्रा कितनी है इसका पहचानना भी संभव हो सकेगा. एंड दैट इज़ व्हाट द यूवी एनर्जी और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ऑल अबाउट. When you talk about electronic transitions in polyatomic molecules, when there are more than one atoms, कई ऐसे organic molecules हैं जिनमें एक large assembly है carbon, hydrogen and other compounds like there are elements like oxygen, nitrogen. तो ऐसे compound में जिनमें एक बड़ी assembly है, तो हम जब molecule की बात करते हैं तो जाहिर है हम molecular orbitals की बात करते हैं, जहाँ molecular orbital theory इस picture में आती है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ऑल्सो नोन एज बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, molecular orbitals. Molecular orbitals are formed as a consequence of overlapping or the combination, addition, subtraction of atomic orbitals. So that is all molecular orbital theory. If you remember, अगर आप LCAO अप्रोच को फॉलो करें उस हिसाब से आपको molecular orbitals के बनने की खबर बिल्कुल निश्चित रूप से पता होगी. These molecular orbitals are produced by linear combination of atomic orbitals. अभी मैंने आपसे कहा कि there is a scheme of formation of bonding orbitals, linear combination of atomic orbitals. तो atomic orbitals को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है. So that is how the molecular orbital theory is developed under this hypothesis. And there are two important levels where electronic transitions are possible between HOMO and LUMO by the absorption of UV visible energy. इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सिस्टम, यदि कोई पदार्थ UV विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से होंगे? निश्चित रूप से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर, मतलब दो क्वांटाइज्ड एनर्जी गैप होगा, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा. इफ अ पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट एनर्जी इज इरेडिएटेड ऑन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यदि एक निश्चित ऊर्जा जो उसके क्वांटम को मैच करती है अगर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे. एंड एज आई सेड कि HOMO का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो होगा HOMO से LUMO की तरफ, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्रोमोफोर सच एज ए नॉन बॉन्डिंग और पाई इन अनसैचुरेटेड फंक्शंस. तो आमतौर पर ये जो ट्रांजिशंस होते हैं पाई से, N से होते हैं, सिग्मा से भी हो सकते हैं, लेकिन सिग्मा ट्रांजिशंस they require large energy. So normally we avoid the basic transitions of this kind. And this electronic transitions originate from valence electron, as just we have said about the pi electrons in unsaturated functions, and they can be assigned to different types like pi to pi star, N to pi star, N to sigma star, sigma to sigma star, and so on. That we know about this chemistry. Due to their symmetry properties in molecular orbitals, such transitions can be allowed or forbidden. तो यहाँ एक पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल होगा कि कौन से ट्रांजिशंस अलाउड होंगे, कौन से संभव होंगे, कौन से नहीं होंगे, नॉट अलाउड.
तो ऐसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करती हैं और इसके आधार पर कुछ सिलेक्शन रूल्स को क्वांटम मैकेनिक्स की दृष्टि से डेवलप किया जाता है. Absorption with high epsilon are allowed transitions and low epsilon absorptions are forbidden transitions. मतलब जिनके एप्सिलॉन वैल्यूज ज़्यादा होती हैं वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे और लो एप्सिलॉन वैल्यूज जो हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे. अब हम देखते हैं कि जैसे इस फिगर में बताया मैंने कि ट्रांजिशंस जो हो रहे हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ. तो यू कैन सी हियर कि एक इलेक्ट्रॉन लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पर गया है. नाउ देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज कि वो उसका स्पिन इन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है, दैट विल सी लेटर. बट इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखेंगे कि HOMO का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन और LUMO की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन वो इन्वर्टेड है. इसका मतलब द नेट स्पिन इज स्टिल ज़ीरो. So when you say that electronic transition measure the probability and energy of exciting a molecule from ground state to excited state, and therefore we need certain basis. So for each energy state, both singlet and triplet states are possible by various routes, various ways. इन ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री आप लोग जैवलॉन्स्की डायग्राम पढ़ते हैं जहाँ कई सारे वाइब्रेशनल स्टेट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स और रोटेशनल स्टेट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है. अभी हम उतने डिटेल में इस बात को नहीं देखेंगे, नहीं ध्यान देंगे. यदि हम बात कर रहे हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो हमारे सामने जब हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि देयर आर 2s+1 स्टेट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी. तो जैसे अगर आप पहला फिगर देख रहे हैं तो यहाँ से सिंगलेट स्टेट है क्योंकि ये स्पिन हाफ और ये स्पिन हाफ, दैट स्टिल मेक्स जीरो, नेट स्पिन इज स्टिल जीरो. So when it is 0, I put here the 2 into 0 plus 1, that becomes a singlet state. लेकिन यदि इसके पास के स्ट्रक्चर की बात करूं, by some mean this electron has got an inverted spin. So now we have half plus half, that makes it 1. The net spin is 1, that corresponds to 2 into 1 plus 1, that is 3, and therefore this is the triplet state. So I would say that this is the first triplet state. In the right hand side and in the left hand side I will say it is the singlet state, excited state, first singlet excited states. So these are the quantum mechanical terms and the selection rule. इसका जो selection rule है वो ये कहता है कि केवल वो ट्रांजिशंस अलाउड हैं जिनमें सिंगलेट से सिंगलेट या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट प्रोसेस हो रही हैं, और वो साफ सूर से ये कहता है कि सिंगलेट ट्रिपलेट और ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन, ये ट्रांजिशंस नहीं होंगे. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट्स आर यूजुअली सिंगलेट्स. तो चूंकि वो सिंगलेट स्टेट्स हैं तो इसका मतलब अधिकतर ट्रांजिशंस जो होंगे वो S0 से फर्स्ट सिंगलेट स्टेट और सेकंड सिंगलेट स्टेट S0 टू S1 और S0 टू S2 और S0 टू S3 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट में है ही नहीं. तो जो अधिकतम ट्रांजिशंस जो हम हमारे हिस्से में आएंगे स्टडी करने के लिए वो S0 S1 S0 टू S2 ट्रांजिशंस ही होंगे. ट्रिपलेट स्टेट्स आर यूजुअली फॉर्म बाय इंटरसिस्टम क्रॉसिंग. जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में देयर इज अ कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द स्पिन इन्वर्जन दैट वी कॉल एज इंटरसिस्टम क्रॉसिंग हम कहते हैं. एंड फ्रॉम एन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू रादर देन बाय डायरेक्ट एक्साइटेशन फ्रॉम S0 ग्राउंड स्टेट. मतलब ऐसा नहीं होता कि S0 से वो ट्रिपलेट स्टेट पर जाए, वो पहले S1 पे जाएगा और S1 से फिर वो एक इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के रूट से वो कन्वर्ट होगा ट्रिपलेट स्टेट में और वहाँ स्पिन का इन्वर्जन होगा और स्पिन उल्टी हो जाएगी. एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट्स आर मोर स्टेबल देन द सिंगलेट स्टेट्स. सो द lambda max of absorption band correspond to the excitation energy and epsilon max to the intensity of transition, a measure of the probability of promoting an electron given the excitation energy. तो जो ये lambda max है ये correspond करता है, मतलब किसी कंपाउंड में अधिकतम एनर्जी जहाँ एब्जॉर्ब हो रही है
वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का है, एंड इट इज़ द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग एन इलेक्ट्रॉन गिवन द एक्साइटेशन एनर्जी। तो उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ हम एक सिग्नल मिलता है या हमको लैम्ब्डा मैक्स दिखता है, वहाँ उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, और उसी की वजह से हमको वहाँ अधिकतम लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ मालूम पड़ रहा है। लेकिन एक बात हम यहाँ और भी कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं। तो कुछ हद तक वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सोफिस्टिकेटेड हो तो वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पर फोकस नहीं करते। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल scale. I have given 100 nanometer to say around 700 or 800 nanometers scale that we have developed, and around 200 nanometers, that is the region where far ultraviolet or vacuum ultraviolet. I would like to tell you that below this level, oxygen starts absorbing ultraviolet energy. तो 100 से 200 नैनोमीटर के जो ये रेंज है, यहाँ पर ऑक्सीजन इंटरफेयर करने लगता है, और इसलिए ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन ना हो, और इसलिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इसलिए इसे वैक्यूम अल्ट्रावायलेट भी कहा जाता है। दिस इज द फार अल्ट्रावायलेट रीजन, दैट्स आल्सो नोन एज द वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, एंड ऑफ कोर्स दीज सच इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली. When we come in the near ultraviolet region, so which start between 200 to around say 400 nanometer, that's a normal UV range जहाँ हम स्टडी करते हैं. बात का तो विजिबल रेंज है. सो वी हैव अ नियर यूवी, और 200 से 400 और 400 से 800 नैनोमीटर का जो एरिया हम मान लेते हैं कि वो विजिबल रीजन है. जैसे मैंने आपसे कहा कि जो फार अल्ट्रावायलेट एनर्जी है वो वहाँ ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस भी होते हैं, और इसीलिए जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, इट इज़ नॉट क्वाइट कन्वीनियंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस. ये बहुत उपयोगी नहीं है. लेकिन इन दिस एरिया देर आर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस that come on record and give some valuable information. एंड एज वी प्रोसीड फॉर कॉन्जुगेशन, अगर मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है, कॉन्जुगेटेड होता जाता है, क्रोमोफोर की संख्या बढ़ती जाती है, तो वहाँ शिफ्टिंग होती है विजिबल की तरफ, और हम देखते हैं कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस और जो कंपाउंड है हमारा वो लगातार कलर्ड होता जाता है, इंटेंस कलर्ड हो जाता है. विल सी इन कमिंग स्लाइड्स. And basically, this is the area where n to pi star or pi to pi star transitions are common. Now we can see अगर मैं बात करूँ इन मॉलिक्यूल्स की, जैसे पहला मॉलिक्यूल लिया मैंने 1 2 3 4 5 कार्बन का है सपोज, 2, एंड दिस इज से एन पेंटेन, and in comparison to the other compound is an conjugated system where it's a diene kind of molecule, and the alcohols are there. Then you have ketonic group cyclohexanone, and then you have another ketonic compounds, and these class of compounds that have been shown here. Now the purpose of showing these molecules is that the first molecule has only a sigma bond, so it will only show the sigma to sigma star transitions, which is normally not convenient from the UV spectrophotometer point of view, because it requires a vacuum spectrophotometer for understanding. लेकिन जो दूसरे कंपाउंड है जहाँ डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी मिलेगा सिग्मा के अलावा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस के अलावा. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, द थर्ड कंपाउंड, दैट्स एन अल्कोहल, say 1 2 3 4 2-butanol, butane 2-ol. Now that's contain only a sigma bond and a oxygen atom that contains a lone pair of electron, so and non-bonding electron. So n to sigma star transitions are quite likely. जब हम बात करते हैं आखिरी मॉलिक्यूल के इस लेफ्ट हैंड साइड पर, साइक्लोहेक्सेनोन, so it has got a double bond, it has got a single bond, it has got an oxygen that contains a non-bonding electron. तो यहाँ पर हमको तीनों प्रकार के ट्रांजिशंस संभव होंगे. So you can see also here otherwise that these compounds like in benzene, there is no non-bonding electron, so pi to pi star transitions are possible, and followed by the other compounds
देर आर डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल। तो वो समझ में आ जाता है हमको देखकर कि यहाँ कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। This is the typical spectra that we have shown for benzene molecule and the the cyclohexanone. As you can see, the first one is for benzene, that shows around 280 nanometer, and the second one is about 200, close to 200. So when you talk about lambda max for various molecules, if you talk about ethene, it's only 171 nanometer, so that's very high energy UV energy. When you talk about 2-butene, it's about 182. When there is a conjugation system, थोड़ा सा डबल बॉन्ड बढ़ा, सो एक आपका जो lambda max है वो शिफ्ट हो गया 217 नैनोमीटर के ऊपर। इसी प्रकार जब दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ वेराइंग लेंथ्स एंड कॉन्जुगेशन देयर इज ए शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड, एंड from 226 to 263 to 290, lambda max values are getting shifted, and obviously when it shifts as far as to the visible region, it is going to be colored. If you talk about these propane or ketone compound, so you have possible pi to pi star and n to pi star transitions correspondingly around 188 and 279 nanometer for the lambda max. If I talk about the other one, that have butane 2-on, then this is 210 and 315 nanometers are various transitions. For benzene, it is close to 256 cyclic system and conjugation, and then you have this naphthalene and anthracene that has correspondingly 286 and 375 nanometer. That shows, ये बताता है कि कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है और वो रेड शिफ्ट की ओर खसकता है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम हमने शो किया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, जो हम बहुत छोटी क्लासों में, आप क्लास 11th और 12th में डिस्क्राइब करते हैं कि 1s और 1s जो है वो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, इसी प्रकार सिग्मा 2s कॉरस्पॉन्डिंगली ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमको इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो यू कैन फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट, सो sharing the electrons. Now you see that in sigma 1s and sigma star 1s electrons are completely occupied, similarly in sigma 2s. But when you talk about the pi 2p and pi star 2p, the configuration shows that there are two unpaired electrons in the sigma star 2p orbitals. And now if you give some energy, it is quite likely that an electron is promoted from the sigma pi star 2p to sigma star 2p. So that is what we call the highest occupied molecular orbital, HOMO to LUMO. This kind of transitions are possible. Well, this takes place at high UV energy, as I told you earlier. This is just a demonstration for oxygen molecule. The oxygen molecule is a very interesting case. The lowest energy arrangement for oxygen is a triplet state. जब आप देखते हैं कि दोनों ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है ट्रिपलेट स्टेट में, हालांकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों की स्पिन हाफ हाफ है, तो दोनों को मिला के नेट स्पिन 1 हो जाती है, एंड 2s+1 के हिसाब से वो नेट स्पिन हो जाती है इनकी 1, सो 2s+1 के हिसाब से ट्रिपलेट स्टेट है। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात होती है कि विद इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, ड्यू टू सम सेंसिटाइजर्स, ये जो ट्रिपलेट स्टेट है ये सिंगलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। And if this is converted into singlet state, this is something, it vigorously reacts with the body cells and responsible for the decay in the body. So singlet state चूँकि थोड़ा सा ख़राब है और वो हमारे जो सेल्यूलर डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन कहें हम या डिके कहें, एक इस तरीके से चूँकि हमको प्रभावित करता है, सो द केमिस्ट्री टेल्स अस दैट इफ़ यू यूज सम पॉलीन्स which are colored species, then the singlet oxygen
विच इज़ प्रोड्यूस विद इन आवर बॉडी वुड बी कन्वर्टेड टू ए ट्रिपलेट स्टेट। और ये जो ट्रिपलेट स्टेट है वो हानिकारक नहीं होगा, लेकिन सिंगलेट स्टेट हानिकारक है। उस हानिकारक ऑक्सीजन को दूर करने के लिए इफ वी कंज्यूम द कंपाउंड्स विच कंटेन्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स like tomato and carrots, maybe we can keep ourselves far apart from aging, एजिंग से बच सकते हैं। और केमिकल प्रोसीजर यही है कि सिंगलेट ऑक्सीजन को ट्रिपलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है एक कॉरस्पॉन्डिंग पोलीन। So the triplet state of the polyene reverts rapidly to the stable singlet state. Thus polyene serve as a deactivators for singlet 1O2 and by their presence protect other molecules from oxidation. That's the beauty of the polyenes. Like one that's beautiful tomatoes, a wonderful color, that's only due to corresponding, you can see a huge carbon chain that has a conjugation, high degree of conjugation. It's 11 conjugated double bonds are there within this system. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These are the conjugated systems. While these are out of conjugation, so because of heavy conjugation, it has a beautiful color as we see. And extended conjugation is a reason for this. And why is this? Because again the molecular orbital theory comes into the picture. The absorption mechanism shifts from UV into visible. A compound that removes some wavelengths of light from white light by absorption is perceived by the human eye as having color. For example, beta carotene has a long conjugated hydrocarbon skeleton which may be a conjugated pi bond, as we have seen in the structure also earlier. The absorption maximum is between 450 to 500 nanometer, which means that energy difference between its highest field and lowest unfilled molecular orbital is small. अगर ये एक्साइटेशन 450, 500, 550 नैनोमीटर पे हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी गैप जो है HOMO और LUMO का बीच छोटा है। और वो छोटा क्यों है? क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है लगातार। एंड बीटा कैरोटीन के केस में अगर वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो हमको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो ब्लू लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंगली लो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, अर्थात एनर्जी गैप स्मॉल होगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो ऑन. This is the structure of a carotene molecule. Carrots have a compound of carotene. That's a huge structure with high conjugation and a beautiful orange color for the carrots of there. And this is the absorption spectrum of beta carotene that takes place somewhere around, say, 480 nanometer or 440 nanometer. You can see absorption is close to around 500 nanometer. And this is now I am trying to explain you that if you consider the first figure in the left hand side, there are only 2 pi orbitals. So pi to pi star transition would be of greater energy. लेकिन अगर किसी सिस्टम में ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इसमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर जैसे इसके एक्सट्रीम राइट में बताया गया है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा बनते जाएंगे उनके बीच के एनर्जी गैप उतना ही छोटा होता जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि यदि 11 इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 पाई ऑर्बिटल्स हो तो 12 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनके बीच की जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस है वो छोटा होता जाएगा और इसलिए विजिबल एनर्जी उनको कलर्ड बनाने में सक्षम होगी। सो दैट इज़ द फिलोसॉफी ऑफ शिफ्टिंग टूवर्ड्स रेड व्हेन यू टॉक अबाउट absorption of pi to pi star type. Then there are beautiful colors of compounds like anthomycins. They are occur naturally in plants and responsible for purple color of various things. And although highly colored, these compounds are not being used commercially to any extent as dyes, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाते हैं। अगर यूवी लाइट और विजिबल लाइट से उनको ज़्यादा हीट मिले तो ये कंपाउंड्स का जो रंग है वो फेड हो जाता है। इसकी वजह से इतने सुंदर दिखने वाले जो ये सब्सटेंसेस हैं, ये जो फ्रूट्स और जो इनके फ्लावर्स हैं वो पिगमेंट के रूप में काम में नहीं आते। लाइक दीज आर द स्ट्रक्चर्स
responsible for cyanidine. This is also a class of compound. So, blue grapes. Similarly, you have an anthomycin, a beautiful cherry, and other kind of colors. Brilliant colors are there with different structures. And see how a beautiful flower. Similarly, you have heard about a chlorophyll molecule. Chlorophylls are a group of intensely green pigments. सब जानते हैं पत्तियों में फूल. And these complex molecules represented by a chlorophyll A are central to the conversion of light energy into the chemical energy is process known as photosynthesis. यहाँ जो photosynthesis हो रहा है उसका जो संबंध है वो है absorption of photon of light. And upon absorption of a photon of light, an electron in the extended pi system of chlorophyll is promoted to an anti-bonding orbital, producing an excited state. तो वहाँ पर भी कोई एक molecular orbital में transition हो रहा है, and an electron is transferred along a chain of molecules. अब यहाँ थोड़ा सा एक अलग हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है वो एक मॉलिक्यूल्स की चेन में पास होता है, एंड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के वो रिडक्शन को प्रभावित करता है, और ये जो प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन. इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो फिक्स हो जाता है, एंड इट अल्टीमेटली गोज टू सम अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और जो पेड़ ग्रो होता है उसका जो तना, उसकी पत्तियाँ और सब, इनमें एक क्लोरोफिल का बड़ा कार्बन फिक्सेशन का महत्व है. और ये अपने आप में एक कंप्लीट केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री. इंटरेस्टिंग है क्लोरोफिल की स्टडी. और क्लोरोफिल का भी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए. देयर इज अ गुड डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन इन सम हेटेरोसाइकल्स, लाइक नाइट्रोजन एटम्स आर देयर यूजिंग अ मैग्नीशियम एंड कीटोनिक ग्रुप. सो देयर इज नो वंडर व्हाई दिस कंपाउंड शुड बी अ ब्यूटीफुल green colored substance. So that's all for now. I hope you have enjoyed this session. Thanks for watching the video.